Good morning, children. How are you all? I hope you all are well, learning lots of things. So, children, today I am back with a new topic and we'll be learning about different types of diseases. तो आज हम पढ़ेंगे diseases का मतलब क्या होता है, what is the meaning of the word disease, and also the different types of diseases that we suffer from. Okay, then we'll start with the definition of the disease, the word disease. So, according to Oxford English Dictionary, this disease is a condition of body or some part of the body or organ of body in which its function are disrupted. Yes, तो इंग्लिश जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है उसके हिसाब से डिजीज़ का मतलब क्या होता है, इट इज़ a condition of body or some part of the body or organs of body in which its function are disrupted. एक शरीर का पार्ट जिसमें क्या होता है कि डिजीज़ जब होता है तब तो उस पार्ट का जो फंक्शन होता है वो डिसरप्टेड होता है, वो नॉर्मल फंक्शन नहीं होता है. एंड दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ डिजीज़. And also, according to ecological point of view, diseases is a maladjustment of the human organism to the environment. Yes, when we cannot adjust to the environment and our body doesn't work properly, then we said to have that we are suffering from diseases. Also, the word diseases comprises of two words, dis and ease, which means not comfortable. ठीक है, it is a condition in which some body part of the part or the whole body does not work properly. So there are basically two types of diseases. Number one is communicable disease and other is non-communicable diseases. So we'll start off with communicable diseases. Diseases that are spread from one person to the other. Okay, and this diseases that are catching, diseases that are caused by germs or pathogens. Pathogens means like virus, bacteria, worms, fungi, etc. So communicable diseases किसको कहते हैं? Those diseases which are spread from one person to another. एक आदमी से दूसरे आदमी जो फैलता है उसको कहते हैं हम communicable diseases. इसको contagious diseases भी कहते हैं. ओके, और ये कैची होता है, मतलब एक आदमी को अगर हो रखा है तो दूसरे को भी होने की आशंका होती है. एंड डिजीज़ेस दैट आर कॉज्ड बाय जर्म्स और पैथोजेंस, और इनके कैरियर्स कौन होते हैं? जर्म्स और पैथोजेंस, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, वर्म्स, फंगी, एक्सेट्रा. So here are some of the name of communicable diseases that we'll learn. We'll start off with cholera. Now, cholera is a communicable disease and it is spread mainly from polluted food and water. Okay. Second, टाइफाइड. टाइफाइड भी एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो कि होता है दूषित खाने और पानी से. हेपेटाइटिस, जिसको हम जॉन्डिस भी कहते हैं, हिंदी में पीलिया कहते हैं, वो भी गंदे पानी और गंदे खाने के वजह से ही होता है. इन्फ्लुएंजा, जिसको फ्लू कहते हैं, एंड मोड ऑफ स्प्रेड क्या है इन्फ्लुएंजा का? पॉल्यूटेड एयर. ओके, अगर हम गंदे जगह, गंदे एनवायरनमेंट में अगर सांस लेते हैं तो हमें फ्लू होने की आशंका होती है. देन विल टॉक अबाउट ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जिसको हम कहते हैं, ये भी दूषित हवा के वजह से फैलता है. मलेरिया सबको पता है, मॉस्किटो की वजह से फैलता है ये. टेटनस, ये वुंड एक्सपोज टू डस्ट और रस्टेड आइटम्स. ओके, जो जंग लगे हुए जो आइटम्स होते हैं और कटे हुए सरफेस होते हैं हमारी बॉडी पे, उनके इन्फेक्शन के वजह से भी ये टेटनस फैलते हैं. अब जैसे कि कोल्ड है, तो कोल्ड को कौन फैलाता है? वायरसेस. इन्फ्लुएंजा और फ्लू अगर होता है किसी को तो उसकी भी कैरियर वायरसेस होते हैं, वायरस के वजह से फैलते हैं. पिंक आई एक बीमारी है, वो भी एक कंटेजियस डिजीज़ है जिसको कम्युनिकेबल डिजीज़ भी कहते हैं, और ये भी वायरसेस या तो बैक्टीरिया की वजह से होता है. चिकन पॉक्स, ये भी वायरस की वजह से. मर्सा, बैक्टीरिया की वजह से. हेपेटाइटिस और एड्स जो हैं ये वायरस की वजह से होता है. ओके चिल्ड्रन, नाउ विल टॉक अबाउट नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. So non-communicable diseases is a diseases caused due to
multiple causes and are not passed or transmitted directly or indirectly from person to another by any agency. तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का मतलब होता है वो डिजीज़ जो कि एक आदमी से दूसरे आदमी तक नहीं फैल सकता है. ओके, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ इज़ अ डिजीज़ विच आर नॉट पास्ड फ्रॉम person to another person. Example, cancer. There are many examples of non-communicable diseases. So basically non-communicable diseases वो diseases होते हैं जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान तक नहीं फैलता है. ओके, क्या causes होते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की? हेरिडिटरी, पास फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड. हेरिडिटी की वजह से होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़. एनवायरनमेंट की वजह से, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम काम करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि दूषित हवाएं निकलती हैं. न्यूक्लियर पावर प्लांट जहाँ पे होता है वहाँ पे वो हवा बहुत ही दूषित होता है, उसकी वजह से भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं. लाइफस्टाइल, पुअर हेल्थ हैबिट जैसे कि टैनिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, पुअर डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड इमोशनल स्ट्रेस, इन सभी की वजह से भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होने की आशंका होती है. नाउ, हाउ टू प्रिवेंट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, कैसे हम इसको रोक सकते हैं? बाई टेकिंग बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, अवॉइड टोबैको, एल्कोहल एंड अदर ड्रग्स, रेगुलर चेकअप्स कैन आइडेंटिफाई अर्ली वार्निंग्स ऑफ डिजीज़, मैनेज स्ट्रेस लेवल्स. ओके, सो हम इन सब चीज़ों से, ये सब करने के बाद हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को कुछ हद तक होने से रोक सकते हैं. ओके, नाउ अभी हमने नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को देखा कैसे प्रिवेंट करना है. नाउ विल लर्न अबाउट स्ट्रैटेजीज़ फॉर प्रिवेंटिंग कम्युनिकेबल डिजीज़. कम्युनिकेबल डिजीज़ जो कि कंटेजियस होता है वो एक आदमी से दूसरे आदमी तक फैलने में कैसे हम रोक सकते हैं. सो विल स्टार्ट ऑफ विथ वॉशिंग आवर हैंड्स. वी शुड वॉश आवर हैंड्स प्रॉपरली, हैंडल फूड प्रॉपरली. जो खाना बनाते समय, खाना किसी को देते समय बिल्कुल नीट एंड क्लीन हमें रखना है अपने हाथ को, बर्तनों को, एनवायरनमेंट को, ताकि ये डिजीज़ ना फैलें. ईट अ बैलेंस डाइट, अवॉइड शेयरिंग ईटिंग यूटेंसिल्स. एक ही एक ही थाली में दो इंसान शेयर ना करें, अलग अलग खाएं. प्रिपेयर एंड स्टोर फूड प्रॉपरली, अच्छे से खाना नीटली बनाना और उसको अच्छे से स्टोर करके रखना, इससे भी हम रोक सकते हैं. अवॉइड अननेसेसरी कॉन्टैक्ट विथ इल पीपल. जो बीमार है उससे हम उसके पास ज़्यादा ना जाए, उससे दूरी बना के रखें. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ व्हेन यू आर इल. जब हम बीमार होते हैं तो अपना भी ध्यान रखें. गेट वैक्सीनेटेड, इलाज सही टाइम पे लें. प्रैक्टिस एब्सटिनेंस फ्रॉम सेक्सुअल एक्टिविटी, लर्निंग टू मैनेज स्ट्रेस लेवल. ओके, तो हमें स्ट्रेस लेवल को कैसे मैनेज करना है वो भी हमें सीखना होना चाहिए. ओके, these are again the same thing. Wash hands, cover mouth when sneezing or coughing. छींकते और खांसते समय हमें अपने मुंह ढक के रखना चाहिए. प्रॉपर केयर ऑफ़ फूड, डोंट शेयर फूड. जूठा खाना हमें नहीं खाना चाहिए. ईट हेल्दी एंड एक्सरसाइज टू इम्प्रूव इम्यून सिस्टम. येस ऑफ कोर्स, हमें अपना इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए. और हमें डेली नहाना भी चाहिए, सो दैट जो भी जर्म्स है हमारी बॉडी पे वो हमेशा के लिए हट जाए और हमें इन सब बीमारियों से बच सके. ओके, आई होप दिस मच इज़ क्लियर टू यू ऑल चिल्ड्रन. सो विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय एंड हैव अ नाइस डे.